request Param Pushniya, Sarasang Chalakji, and other dignitaries on the dais to offer floral tributes to Bharat Mata. To this begin program by invoking the blessings of our gods, I now request Kumari Lakshmi Shri to please do the prarthana. Bantu riti kono viya vaiya Rama, 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 Bantu riti kono viya vaiya Rama. తుండవెంటి వాణి తుండవెంటి వాణి తుండవెంటి వాణి మోదనైన మద తుండవెంటి వాణి మోదనైన మద తుండవెంటి వాణి మోదనైన మద గొలచేయు నిజ తుండవెంటి వాణి మోదనైన మరాదున పట్టునైన గొలచేయు నిజ పంటు నీతి కోను వియ వయ్య రామ, పంటు నీతి కోను వియ వయ్య రామ. Thank you, Lakshmi Shri. Good evening, everyone. Respected dignitaries on the dais, Param Pujaniya Sarasang Chalak, Dr. Mohan Bhagwatji, Shri HVS Krishna, past President, All India Lagu Udyog Bharati, Shri Narayan Prasanna, President, Lagu Udyog Bharati Karnataka, Shri Ravi Kumar, General Secretary, Lagu Udyog Bharati Karnataka, Shri Lakshmi Shah, Treasurer, Lagu Udyog Bharati Karnataka. It is indeed a moment of immense honor and divine blessings for all of us to welcome our Param Pujaniya Sarasanga Chalak, Dr. Mohan Bhagwatji, amongst us this evening. Dr. Bhagwatji is a visionary leader whose life stands as a beacon of dedication, discipline, and devotion to the nation. Hailing from Chandrapur in Maharashtra, he belongs to a family deeply rooted in the values and ideals of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. After completing his post-graduation in veterinary sciences, Dr. Bhagwatji chose a life of service and commitment by becoming a full-time Sangha Pracharak in the year 1975. Over the decades,
He has held several key responsibilities within the organization, including Joint General Secretary and General Secretary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. In March 2009, Dr. Bhagwatji assumed the esteemed position of the 6th Sarasanga Chalak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Since then, he has been a guiding light for millions through profound wisdom, unwavering conviction, and deep sense of patriotism. We are also privileged to have amidst us today several senior functionaries of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, whose presence adds value and inspiration to the occasion. Dr. Krishna Gopalji, Sahasar Karyavah. Shri Mukundji, Sahasar Karyavah. Shri Mangeshji Bhende, Akhil Bharatiya Vyavasthapana. Shri Sudhirji, Akhil Bharatiya Sah Bauddhik Pramukh. श्री भरत कुमार जी, दक्षिण मध्य क्षेत्र प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। श्री तिप्पे स्वामी जी, दक्षिण मध्य क्षेत्र कार्यवाह एंड ट्रस्टी ऑफ IMS फाउंडेशन। श्री प्रकाश चंद्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक एंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, ऑल इंडिया लघु उद्योग भारती। श्री शंकर चंद जी बगरेचा, ट्रस्टी, IMS Foundation. With this brief introduction, I now request our State President, Shri Narayan Prasanna ji, to kindly felicitate our Sarasanga Chalak ji, Dr. Mohan Bhagwat ji. On behalf of Laghu Udyog Bharati Karnataka, I extend a heartfelt welcome to each and everyone in the audience. Now, with utmost humility and reverence, I now request our Param Pujaniya Sarasanga Chalak, Dr. Mohan Bhagwatji, to kindly address this august gathering and enlighten us with his words of wisdom. मंचस्थ सभी लघु उद्योग भारती के और IMS के आदरणीय पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए सभी उद्योजक बंधु, मैं स्वयं उद्योजक नहीं हूं, इसलिए आप जो करते हैं उसमें अधिकार पूर्वक आपसे कुछ कहना ये मेरे बस की बात नहीं है, परंतु संघ के कार्य के निमित्त देश भर घूमना फिरना होता है, कई चर्चाएं सुनता हूं, उसमें से कुछ बातें आपके सामने रखने लायक है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। MSME ये जो सेक्टर है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का उसको बल देने वाला, उसको संभाल के रखने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। कृषि सहकार MSME और इसके साथ कुटुंब के आधार पर चलने वाली अपनी आर्थिक गतिविधि, ये चार फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण दुनिया भर में जो आर्थिक उतार चढ़ाव
आते हैं उसका भारत पर कम परिणाम होता है, और कभी कहीं से टैरिफ वगैरह लग जाते हैं। ऐसी अचानक आने वाली ऊटपटांग संकट जो है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने वाला भी यही उसका बल है। इस दृष्टि से आज मैंने प्रदर्शनी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी जब घूमता हूं तो यहाँ जिनके स्टॉल लगे हैं उसमें कुछ व्यक्तियों के उद्योग को भी देखने का मुझे मौका मिला है। तो हाल के 5-10 वर्षों में अपनी ये जो एमएसएमई है वो और आगे बढ़ रही है और दुनिया से स्पर्धा करने लायक धीरे धीरे बन रही है। जो आत्मनिर्भरता की बात आजकल चलती है उसको प्रत्यक्ष जमीन पर उतारने वाली ये बहुत बड़ी गतिविधि एमएसएमई है। दुनिया की जो प्रचलित पद्धति है उसमें उसी पद्धति में हम बढ़ते गए तो अनुभव है कि संपत्ति का, उत्पादन का केंद्रीकरण होता है। जब ऐसा केंद्रीकरण होता है तो रोजगार कम हो जाते हैं अपने आप। मनुष्य पर निर्भर हो जाता है और पर्यावरण भी खतरे में पड़ता है। कई बातें होती है। तो मास प्रोडक्शन ऐसा होता है, उसके चलते भी ऐसे ही होता है। लेकिन लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इनके द्वारा प्रोडक्शन बाय मासेस होता है। उसके कारण रोजगार बढ़ता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और मनुष्य तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्वतंत्र हो जाता है। और इसलिए उत्कृष्टता का बहुत महत्व है और उसकी ओर हमारा ये सेक्टर बढ़ रहा है। हर जगह हम आगे जा रहे हैं, हम उत्साह से आगे जाए ऐसा वातावरण भी धीरे धीरे, जैसा जितना गति से हमको चाहिए शायद वैसा नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ रहा है। तो व्यापारिक स्पर्धा में आगे रहना, देश के उत्पादकों को, देश के उत्पादनों को उत्कृष्ट बनाना, बाजार की स्पर्धा में भारत हमेशा आगे रहे ऐसा करना, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। उस पर हमारा ध्यान है, ये अच्छी बात है। लघु उद्योग भारती के निर्माण के दिनों से मैं बहुत निकट से लघु उद्योग भारती के चलने की सारी प्रक्रिया का दर्शक रहा। अनंतराव भिड़े थे नागपुर में, उनके द्वारा इसकी नींव रखने का बहुत बड़ा काम हुआ। मैं भी नागपुर में ही था, तो लघु उद्योग भारती के सारे करने में जो विचार विनिमय वगैरह होता था उसमें मुझे रखा जाता था। तो मैं ये भी जानता हूं कि लघु उद्योग भारती चाहती है कि सभी उद्योजकों का एक दूसरे से सहकार्य हो, हम भी आगे बढ़े, हमारे सह उद्योजक भी आगे बढ़े, हमारे उद्योग के कारण इस पर योगदान करने वाले और छोटे जो होते हैं उद्योजक, उत्पादन करने वाले, वो भी आगे बढ़े और दुनिया की इस उद्योग की व्यवस्था में हम एक और परिवर्तन लाना चाहते हैं। बड़े उद्योग तो एक वास्तव है,
वो रहेंगे, रहने भी चाहिए, और बाकी देशों में रहेंगे तो भारत में भी रहेंगे, क्योंकि स्पर्धा है आखिर। लेकिन बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को पूरक हो, छोटे उद्योग बड़े उद्योगों को पूरक हो, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो। कठिन बात है, क्योंकि दुनिया भर में देखते हैं तो जो सारे अर्थ व्यापार चलते हैं, उत्पादन चलता है, मार्केट चलता है, ट्रेडिंग चलता है, इस सारे का मूविंग फोर्स ऐसे लगता है कि अधिकाधिक मुनाफा कमाना, यही एक इच्छा रहेगी। नुकसानी में तो कोई जाना नहीं चाहिए, लाभ तो होना ही चाहिए। लेकिन बाकी लोगों का कुछ भी हो, हमको लाभ होना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति बाहर दिखती है। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं सारी दुनिया के और आर्थिक जगत में आज हम देख रहे हैं। मूल से उसको ठीक करना है तो ये जो वृत्ति है उसको बदलना पड़ेगा। और लघु उद्योग भारती के स्थापना में एक उद्देश्य ये भी था कि उद्योजक अपने उद्योग जगत में परस्पर मिलकर रहे, देश के लिए भी और उद्योग जगत में बाकी सब जो लोग हैं उनके लिए भी मिलकर आगे बढ़ना, एक दूसरे को साथ देना, और सभी लोगों ने एक अच्छा रास्ता बना मनुष्य की आर्थिक उन्नति का। मनुष्य को वास्तव में, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मनुष्य हो या देश हो, जब परावलंबी हो जाता है तो उसकी स्वतंत्रता व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय खतरे में पड़ती है। इसका तो हम अनुभव करते ही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी करते हैं। तो मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, इसका उद्घोष तो दुनिया में चलता है, लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी। लेकिन लिबर्टी है तो इक्वालिटी नहीं है, और इक्वालिटी है तो लिबर्टी नहीं है। इस डायलेमा से निकलने के लिए फ्रैटर्निटी आवश्यक है। तो जो बंधुभाव का आचरण है वो केवल आपके हमारे आपस के व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। तो जीवन के सभी अंगों में, उद्योग से लेकर सारी बातों में उस प्रकार का व्यवहार होता है, और ऐसा व्यवहार होने से सभी लोग लाभान्वित रहते हैं, किसी को नुकसानी में नहीं जाना पड़ता, सभी का लाभ होता है। ये संभव है, ये आज दुनिया को दिखा देने की जरूरत है। और हम भारत के उद्योजक हैं, भारत में ये परंपरा हमेशा रही है। जो तीसरा फैक्टर है फ्रैटर्निटी का, उसके आधार पर एक समय था भारत के इतिहास में, रिकॉर्डेड है हिस्ट्री, यानी विलियम डाल्रिम्पल की जो किताब है उसमें भी इसका रिकॉर्ड है। ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 1600 तक हम कैसे चले थे, इसका भी रिकॉर्ड है। और वो ये बताता है कि कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को पूर्व बनकर चल रहे हैं। खेत में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाले बड़े व्यापारियों तक सबका एक सुंदर सहयोग, और उसके कारण सब में सुख समृद्धि, ऐसा एक जीवन का चित्र हमने खड़ा किया था। आज हमको फिर से उस चित्र को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर कोई कर सकता है तो भारत ही है। ये केवल हमारा विश्वास नहीं है, अभी दुनिया भी ऐसा मान रही है। तो सारा करते समय हम लोगों को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात ऐसा हम करने जाएंगे तो सबसे पहली बात यही है कि अपनी उत्कृष्टता के कारण हमको दुनिया में एक वजन प्राप्त करना पड़ेगा। जो प्रदर्शनी लगी है उसमें दिखता है कि उस और हम तेजी से बढ़ रहे हैं।
हमारी साख सारी दुनिया में बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तब हम जैसा करते हैं वैसा दुनिया के लोग करेंगे। तो हम जो करना चाहते हैं वो एकदम सही है, सटीक है, ये होने के बाद भी उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा हम नहीं दिखा सकते तो दुनिया उसको नहीं मानेगी। और हम आगे बढ़ रहे हैं सब दृष्टि से, हमारा सब अच्छा चल रहा है, ये जब सारी दुनिया देखती है तो फिर हमारा रास्ता सही है कि गलत है इसका विचार न करते हुए वो हमारा नुकसान करता है। और युगों के अनुभव से हमको पता है कि हमारा रास्ता सही है, क्योंकि हम जो करते हैं व्यापार सहित सारी बातें, उसमें स्पर्धा से ज्यादा कर्तव्य और सेवा का भाव होता है, जिसको हम नाम देते हैं धर्म। धर्म से चलते हैं, व्यापार भी हमारा धर्म है। व्यापार में आजीविका चलती है, व्यापार से कमाई होती है, ये हमारी परंपरा में हमारे लिए एक बाय प्रोडक्ट है जो आवश्यक है जीवन चलने के लिए। परंतु मुख्य बात है कि ये सारी बातें हम इसलिए करते हैं कि समाज को चलना है, तो समाज को हमको चलाना है। समाज चलेगा तो हम चल सकेंगे। और ये समाज ऐसा है कि वो अपने आप को एक मर्यादा में नहीं रखता। वो व्यक्ति से शुरू होता है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश, देश से सारा जगत, मानवता और सृष्टि से ही पूरा विश्व। ऐसे उस अपनेपन का प्रसारण होते रहता है। तो हमारा दायरा हमेशा बढ़ते रहता है। हम छोटा नहीं सोचते, हम छोटे हैं, छोटे से प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम बढ़ते चले जाते हैं और जितना व्यापक सोचेंगे उतना हम ज्यादा श्रेष्ठ माने जाएंगे। ऐसे अपनी यहाँ की परंपरा है। और इसलिए हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा, वो सोचने के लायक हम बन रहे हैं, ये बड़ी आनंद की बात है। बाहर तो देखता ही हूं, लेकिन एक साथ यहाँ सब देखने को मिलता है। ऐसे समय में हम कहीं भी जाकर आत्मविश्वास से, हमारे जैसे लोग जो उद्योग जगत को नहीं जानते, उद्योग चलाना नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं हमारे, वो इस विचार से बहुत अच्छा करते हैं कि जब देखते हैं तो हम भी दुनिया के सामने सर ऊंचा उठा के आपके तरफ से बात कर सकते हैं। इससे आपका भी लाभ है, हमारा भी लाभ है। और हमारा और आपका लाभ यानी व्यक्तिगत मेरा और आपका लाभ नहीं है, वो पूरे देश का लाभ है, और अपने देश का लाभ सारी दुनिया का लाभ है। तो उद्योजक के नाते हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे सर पे कितना बड़ा दायित्व है, और इतना बड़ा दायित्व होने के नाते हमको ये शक्ति भी प्रकृति से या भगवान से, जैसी आपकी मान्यता है, वो मिली है। उसका प्रगटीकरण मैं यहाँ पर देख रहा हूं। इसको रोकना नहीं, इसको ऐसे ही चलने देना, अधिकाधिक बढ़ाना, और एक दिन संपूर्ण दुनिया एक सुखी सुंदर दुनिया बनकर चले। इसलिए दुनिया का अर्थ व्यापार, दुनिया के उद्योग, दुनिया की कृषि, ये सारी बातें जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, ऐसा हम देखेंगे। इस दूरगामी दृष्टि से हम लोगों को अपना अपना काम करना है। ये विचार मेरे मन में आया, आपके सामने रख दिया।